but still doubts have started plaguing us now, that kya bhagwan sach mein hai, because they are seeing so many things going around jiske bare mein unhe they are not able to explain the reason behind it. So we will see that in detail. Day 3 we will see who am I, main kaun hu, and the science of the soul. What exactly is the soul? Does it really exist? And you'll be surprised that hamare shastron mein soul ka shape, size, सारी चीजें दी हुई है. On day 4, we will discuss one God or many gods. It's going to be a very everyone. Why do bad things happen to good people? How many want to know that? In fact, we will also discuss why do good things happen to bad people. Then everybody catches their time. And day 6, practical application of the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita वैसे तो almost सभी घरों में है, होती भी है, लेकिन लाल कपड़े में बांधी हुई होती है और कभी खुली नहीं होती. So people think that Bhagavad Gita is just a book to be respected, and उसकी पूजा करो, लेकिन उसे खोल कर मत पढ़ो. So we are actually going to see practically how you can apply Bhagavad Gita, because it's a life manual. So let's begin. Search for happiness. So how are you special? We are going to, in our search for happiness series, these are the 4 topics that we are going to see. First, we are going to see आप में और animal, हम में और animals में क्या फर्क है? How are you special? And how are we different from animals? फिर हम देखेंगे problems के 2 types होते हैं, relative problems, real problems. Then we will see how to tackle those problems to achieve real happiness. And finally, we will see what is a permanent solution to keeping our happiness quotient permanent with us. So beginning with the first one, how are you special? So I'm just going to show you, give you a few points to think about. So I'm just going to go quickly through the slides. These are just some ideas that I'm going to share with you. हम सब एडमिशन लेने के लिए कभी ना कभी तो कतार में खड़े हुए ही हैं. Now, while all the people are taking admission or looking for admission, but how many categories of admissions are there? Does everybody come in all the same category या सबकी अलग-अलग categories होती हैं? और अगर होती हैं, तो how can we say that everybody is common or everything is general or everybody is the same? Similarly, when we travel in an aeroplane, travel तो सब इकट्ठे कर रहे हैं, but yet there are different categories of seats, isn't it? So there are categories in everything in life. चाहे आप admissions ले रहे हैं, चाहे आप travel कर रहे हैं, even in a family, everybody, there are different categories. एक पूरा गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अलग-अलग categories के लोग हैं. So if we have more than one category, what does it indicate? This means that there are differences between us. At the same time, it also means that there are some things in common. So what are these? है ना? What do we have in common and what are the differences? अगर हम सभी living beings हैं, तो इसमें जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, इसमें animal kingdom भी आता है, इसमें insect kingdom, amphibian, सभी कुछ. So what is common amongst us is कि हम living beings हैं. All of us are living beings. At the same time, there are some differences as well, because हम उन जैसे नहीं हैं, वो हम जैसे नहीं हैं. What is the difference? इसके लिए महाभारत का ये famous श्लोक है. I'd like to say that. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः. So what are the 4 material needs which are common? Let us see first कि दोनों commonalities क्या हैं. Living being, पशुओं में और हम में. And when I say animals, please consider all animals, beasts, amphibians, reptiles, all of them. तो उनमें और हम में क्या similarities हैं? First, let us see the similarity जो इस verse में बताई गई है. आहार, eating, निद्रा, sleeping, भय मतलब अपने आप को protect करना from enemies, मैथुनम च, mating.
सामान्यमेतत् पशुभिर नराणम। सामान्यम मतलब ये समान है पशुओं में भी, नरानम में भी, नर में भी और पशुओं में भी, ये चारों चीजें कॉमन है। हमने इसको एक इजी टू रिमेम्बर एक्रोनिम दे दिया, सीड। सीड मतलब बीज, राइट? वही बीज है उनमें भी और हम में भी, जीवन का बीज। और इस बीज के तहत हम दोनों ही सेम चीज कर रहे हैं। एस फॉर स्लीपिंग, ई फॉर ईटिंग, द सेकेंड ई फॉर एंजॉइंग विच इज मेटिंग, विच इज मैथुनम च विच इज सेक्स लाइफ, and D, defending ourselves. So seed is common between humans and animals. तो क्या हम सब जानवर हो गए? I don't think so. तो फिर हम और जानवर से अलग कैसे हुए अगर हम भी यही कर रहे हैं सीड और वो भी यही कर रहे हैं? So the third line says धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही है जो तेषाम मनुष्य में अधिको विशेषो, अधिक विशेष है या स्पेशल है। केवल मनुष्य योनि में धर्म विशेष है। धर्मेन हीन, विदाउट धर्म पशु भी समान, पशु के समान है, फिर कोई डिफरेंस नहीं। अगर धर्म को निकाल दो फिर एनिमल्स भी सीड फॉलो करते हैं, मनुष्य भी सीड फॉलो करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, जनरल कैटेगरी है, सबको एक जैसा एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 98% हूं, तो मुझे कैसे आप वही क्लास दोगे जो एक 40% को दोगे या 35 या जस्ट पास को दोगे? ऑफ कोर्स यू वुड वांट बेटर ट्रीटमेंट, इजंट इट? कि मैंने ज्यादा मेहनत की, मैं 98% लाया हूं, आप मुझे 45% वाले में कैसे डाल दोगे? Hence, exactly, therefore there are different categories of people डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे कितनी मेहनत की है और कितना आपने कैसा कर्म किया है। सो द डिफरेंस इज धर्म। अदरवाइज इफ यू सी व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, ये इफ यू कैन सी कि ये जो पैंथर है ही इज स्लीपिंग एंड द मैन इज आल्सो स्लीपिंग, ऑल्दो ही इज स्लीपिंग इन अ वेरी एक्सोटिक रिजॉर्ट इन हवाई, और वो अपनी फोटो भी फेसबुक पे डाल रहा है कि देखो मैं कैसे यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ, आई हैव सो मच मनी एंड आई एम सो अकम्प्लिश्ड, आई हैव द टाइम। बट इफ यू रियली सी, ही एनिमल्स डोंट publish or publicize or advertise their act of sleeping, but human beings are so foolish कि वो अपने सोने की टेंडेंसी को भी एडवर्टाइज करते हैं, जबकि इट्स नथिंग मोर। सिमिलरली हम अपना हाउ मच वी शो ऑफ or we broadcast our eating tendencies, but it is nothing different than what the ape is eating. The only difference is we are showing it off in a more sophisticated way. Similarly, enjoying mating, male female mating हर species में होती है, but we still pride ourselves that if we are doing it we are higher than the animal kingdom, but we should really think that are we really, because we are doing the same thing. And similarly defending, अगर एनिमल किंगडम में लड़ाइयां हैं तो ह्यूमन बीइंग्स की तो पूछो ही मत, द वे वी फाइट विद ईच अदर। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर सीड कॉमन है दोनों में, डिफरेंस क्या है? वेल, डिफरेंस इज रीजनिंग। वी आस्क क्वेश्चंस, वी रीजन, वी प्लान कि आज का दिन तो हुआ, कल क्या होगा? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कोविड इज अपॉन अस, हाउ आर वी गोइंग टू प्लान फॉर इट? एंड देन वी क्वेश्चन कि ये क्यों हुआ, जो भी हुआ, इज देयर एनी वे to tackle it? How can we protect ourselves? And we think, human beings think on what is the best way forward, what is the best idea of defense. And finally, logic. We apply logic, common sense, intelligence to whatever is happening around us. And all these four things require one thing, which is asking, questioning, not passive. We are not like, आप सबने देखा होगा जो बुचर होता है, बुचर की दुकान के बाहर जिस बछड़े को या जिस गोट को उसने स्लॉटर करना होता है उसको वो बांध देता है और उसके सामने हरी घास डाल देता है और वो खाना शुरू कर देती है, जबकि शी इज नॉट बॉदर्ड कि उससे पहले जो यहाँ पर घास खा रही थी वो ऑलरेडी कट कर टंग चुकी है खिड़की में, बट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। व्हाई? बिकॉज शी हैज नो रीजनिंग पावर, नो क्वेश्चनिंग पावर, नो थिंकिंग, नो लॉजिकल इंटेलिजेंस। ऑल शी सीज इज मेरे पास हरी घास मिल रही है, फ्री में मिल रही है, आई एम गोइंग टू ईट, अभी तो मिल रही है ना, लेट मी एंजॉय। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट फ्यूचर प्लानिंग और थिंकिंग। हेंस this is the big difference between human beings and, so how are we special?
by these four things, ABCD. So we are not talking about the English ABCD, we are talking about the spiritual life ABCD. इन सबको हम एक एक बार डिटेल में देखेंगे. ABCD. A is ability for higher inquiry. मतलब कॉमन सेंस यूज करना, भेड़ चाल से अलग होकर चलना. Not following just because 99% of the people are following. You are questioning, you're asking, you're trying to find out what is the right way. And I would please congratulate all yourselves, all the 23 people that are here today. You should be congratulating yourself because you are the ones who are asking these questions and therefore you have turned up today. The others maybe are just happy eating the grass that the butcher has given them today. B, we will see bliss. What is real bliss? इस नाम को तो हमने बहुत बार सुना है, but what exactly is bliss? Third, C, we will see choice. C for choice. What are the choices we have? And D, finally, for determination. Utsah, Nishchayat, Dhairya. Very crucial. So, ability for higher inquiry. अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है और आप higher inquiry कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. कहाँ से आया हूं? अगर आया हूं और अगर हम सब के सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं एंड फ्यूचर रीइंकारनेशन में विश्वास करते हैं, तो अगर हम यहाँ आए हैं मतलब पहले कहीं थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और अगर यहाँ हैं और यहाँ से भी हमें जाना पड़ेगा तो वेयर विल वी गो, कहाँ जा रहे हैं. एंड फाइनली अगर मैं यहाँ हूं तो मेरा रोल क्या है? जस्ट सीड, eating, sleeping, mating and defending? Really? तो फिर मुझ में और जानवरों में क्या फर्क हुआ अगर मुझे यही काम करना है? तो अगर तो आप ये इंक्वायरी कर रहे हैं, you will be promoted to a better quality of life, a safer quality of life and a happy life. लेकिन अगर ये इंक्वायरी नहीं आ रही है, then we are no better than the animal kingdom. Similarly, bliss. Bliss मतलब it is a rasa. संस्कृत में इसे रस कहते हैं. रस मतलब आनंद. सो सबसे बेसिक क्वालिटी, लोएस्ट क्वालिटी ऑफ आनंद है पार्थिव रस. पार्थिव मतलब ये शरीर जो मरने वाला है. जैसे ही हम पैदा हुए हैं उसी क्षण से ये मरना शुरू हो गया है. दैट इज वाई जब बच्चे का पहला जन्मदिन मनाते हैं, वी डोंट से 1 year यंग, यू आर सेइंग वो ऑलरेडी 1 साल बूढ़ा हो चुका है. लेकिन क्योंकि केवल 1 साल हुआ है, वो इट इज नॉट स्ट्राइकिंग अस कि हम बुढ़ापा सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्चुअली वी आर ग्रोइंग ओल्ड. इसलिए ये पार्थिव रस है. इसमें क्या होता है, ऑल आवर सेंसेस, ये उतना ही हमें इसमें रस मिलता है जितनी हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, ये परफेक्ट है. और यू शुड हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू एंजॉय योर सेंसेस. तो हमारी सेंसेस तो परफेक्ट है ही नहीं. हमें लाइट चाहिए देखने के लिए, जैसे ही अंधेरा हो जाएगा हम देख नहीं सकते. हमें 20 हर्ट्स डेसिबल्स के बीच में ही आवाज सुनाई देती है. इससे लोअर बिलो 20 हर्ट्स हमें सुनाई ही नहीं देती, और इससे ऊपर अगर हो तब भी हमें सुनाई नहीं देती. तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इनकी बहुत लिमिटेशंस है. तो जितनी इनकी लिमिटेशंस है उतना ही हमें रस मिलेगा, इसके बाहर हमें वो रस नहीं मिल सकता. दूसरा, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए. जैसे धीरूभाई अंबानी है, जितने भी रिच, फेमस, हेल्दी एथलीट्स, जितने भी लोग हैं, जितने इनके पास रिसोर्सेज होंगे उतना ही एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन सेंसेस की लिमिटेशन सभी को है. सो कहने का मतलब, अगर आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं, फेमस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं, तब भी आपको केवल बेसिक लेवल ऑफ पार्थिव रस ही मिलेगा. क्योंकि ये जो इंद्रियां आपको मिली हैं इनकी बहुत लिमिटेशन है. इससे ऊपर क्या रस है? स्वर्गीय रस. ये 1000 गुना ज्यादा है पार्थिव रस से. स्वर्गीय रस क्यों इससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा अच्छा है? क्योंकि स्वर्ग में देयर इज नो ओल्ड एज एंड देयर इज नो डिजीज. सो ऑटोमेटिकली वो 1000 गुना ज्यादा हो गया. बट उससे भी ज्यादा 10,000 times मोर एंजॉयबल इज ब्राह्मण रस. ये स्वर्गीय रस से 10,000 ज्यादा हुआ, तो पार्थिव रस से 1 करोड़ ज्यादा हुआ. एंड ब्राह्मण रस मीन्स जब हम अपने हृदय में छुपे परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या उसे जानने की कोशिश करते हैं, या उससे मिलने आने की कोशिश करते हैं, उसे ब्राह्मण रस कहते हैं. ये पार्थिव रस से 1 करोड़ टाइम ज्यादा है. लेकिन ये 1 करोड़ ज्यादा गुना ब्राह्मण रस केवल एक ड्रॉप है इन फ्रंट ऑफ भक्ति रस.
It's just a drop, or bhakti ras is like an ocean. So an intelligent person will look for bhakti rasa and definitely not waste time in parthiv rasa. Because हम सब ने सुना है डेथ बेड, जब डेथ होती है तो हम कहते हैं ये पार्थिव शरीर पड़ा है, अब हम जल्द ही इस पार्थिव शरीर को नमस्कार कीजिए ताकि हम इसको अग्नि दे सके. सो इस पार्थिव रस में हम क्यों ढूंढेंगे रस, ब्लिस? We should be looking at the topmost. Similarly, C. So we have seen A, B, now we are seeing C, which is choice. All of us have freedom. Because freedom है तभी choice है, free will है तभी choice है. But it is up to us कि हम उस choice को कैसे use कर रहे हैं. क्योंकि जो भी हम action कर रहे हैं उसी के बदले में हमें response मिलने वाला है. So we have a power to choose. You can choose what you want to drink, what you want to eat, what you want to do with your hands and legs and your indriya. How you want to do it, with whom you want to do it, where you want to do it. You have this choice. This choice is not available to the animal kingdom because they do not have freedom. They are so conditioned that they will only do seed, eating, sleeping, mating, and defending. But human beings have the power of choice. And finally, determination to do A, B, and C. Reasoning, bliss, and choice. ये तीनों चीजें करने के लिए डिटर्मिनेशन और विल पावर चाहिए. छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे है, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आए हैं पता करने के लिए अबाउट अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, ऑन द सर्च फॉर हैप्पीनेस, ऑन व्हाट भगवद गीता इज ऑल अबाउट. सो what now we have established so far कि common क्या है हम में और animals में? Seed. लेकिन difference क्या है? ABCD. So if we don't explore this ABCD, then we are just a well-dressed, sophisticated, polished, two-legged animal. केवल बकरी ही है, मिमिया रहे हैं. Sophisticated way में कर रहे हैं, लेकिन sophisticated way में केवल seed कर रहे हैं. Eating, drinking, mating, and defending. In fact, we are worse than animals, all the sophisticated people of today. और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो केवल हमें ये ही बना रही है, a sophisticated animal. इनफैक्ट वो हमारी रीजनिंग पावर को कंप्लीटली डम डाउन कर रही है. जैसे अफीम देके सुला दिया जाता है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब करो, उसके बाद गृहस्थी बनाओ, और गृहस्थी में क्या करो? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, एंड दैट्स इट. किसी की नौकरी करो या किसी के नौकर बन जाओ, कहीं पे नौकरी ले लो या अपना काम कर लो. This is nothing but a two-legged animal. So we are worse than animals actually, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये चीजें नहीं होती जो हमारी लाइफ में है. स्लीपिंग पिल्स खा के सोना पड़ता है. There is a scarcity always. डर लगा रहता है कि ये चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी, वैक्सीन्स खत्म तो नहीं हो जाएंगी, मेरा नंबर कब आएगा, बूस्टर डोज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी. ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, जितनी जल्दी पैचअप होता है उतनी जल्दी ब्रेकअप होता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शंस, सुइसाइड्स, और अब तो नई तरह की एडिक्शंस आ गई हैं. पीपल आर चेकिंग इनटू डिजिटल एडिक्शंस. आई मीन आप और हम भी आज जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, इसे फेंक तो सकते नहीं. यू कैन नॉट डू विदाउट व्हाट्सएप, यू कैन नॉट डू विदाउट सोशल मीडिया. आवर लाइफ रन्स थ्रू दिस नाउ. और एनिमल्स डोंट हैव एनी ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स जो हमने एनिमल्स के साथ, बाकी चीजें तो एनिमल की कॉपी की प्लस ये भी कर ली. वेरी अनफॉर्चुनेट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ, अगर आप एनिमल लाइफ को ट्रैक्टर की तरह समझें तो ह्यूमन लाइफ एक मर्सिडीज कार है. इसको कैसे समझा जाए? इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है, इट इज मेंट फॉर अ हायर प्लेजर. आपको एक हायर गाड़ी दी गई है. आपका ये जो शरीर है, ये मर्सिडीज कार बनाकर भेजा गया है. इसका मतलब यू हैव द कैपेसिटी टू एंजॉय ब्लिस, टू एंजॉय हायर प्लेजर. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इस मर्सिडीज को लेकर ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. केवल इस मर्सिडीज को आप एनिमल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. लेट मी यूज माई मनी, माई बॉडी, माई इंटेलिजेंस, माई रिसोर्सेज just to do seed, sleeping, eating, enjoying and defending. मानो खेत जोतने के लिए जो ट्रैक्टर बनाया गया है, आपने वो ट्रैक्टर निकालकर मर्सिडीज लगा दी और मर्सिडीज से खेत जोतने की कोशिश कर रहे हैं. So any intelligent person will actually laugh
कि हमने एक मर्सिडीज रूपी गाड़ी को खेत जोतने में लगा दिया, जबकि इससे और बहुत एडवांस चीजें की जा सकती हैं. एंड नॉट ओनली दैट, हैज एनी ऑफ यू रिडन इन अ ट्रैक्टर? नहीं भी अगर आपने इस पे राइड लिया, यू कैन इमेजिन व्हाट अ बम्पी राइड इट इज. देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीथिंग. लेकिन मर्सिडीज में या किसी भी गाड़ी में, व्हाट इज द राइड? it is safe, it is temperature controlled, you can play music, you have a more smoother ride. There are no, you will be saved from the pots and the bumps in the road. So दोनों की जर्नी में जमीन आसमान का फर्क है. So we have already seen the first part, how are we special, and how, whether we are using that speciality or we are only underutilizing it. Now let's come to the second part, problems. We are all here to find solutions to our problems. So actually शास्त्र हमें बताते हैं कि problems की दो categories हैं. एक तो relative problems होती हैं और दूसरी होती हैं real problems. So let's understand what is a relative problem and what is a real problem. What is a relative happiness and what is a real happiness? Let's see this. So real happiness की definition क्या है? Real happiness क्या होती है? I hope you will all agree that we want to be permanently happy, right? Is there anybody in this class who says, okay, I'm okay if you just make me happy on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I will manage, with my terrible lifestyle. So it's okay if you can give it to me, maybe probably again next Saturday or maybe next month. Is there anybody who will settle with this formula? No, I think all of us want to be happy every single day. And not only that, every minute, every hour of the day. So we want to be happy 24 hours of the day, 365 days a year. Correct? So this is real happiness, that it is permanent. It does not go away. मतलब जैसे हमें खुशी मिलती है, हम चिंता नहीं करते, ओ अब ये मेरे पास कितनी देर रहेगी. दूसरी बात, it should be ever increasing. जैसे आज आपको गुलाब जामुन खाने को मिला और आपने वो बहुत ही आनंद लेकर खाया, फिर आपने दूसरा खाया, उतना ही आनंद मिला. जब तक आप 5th या 6th पीस तक पहुंचेंगे, आप बोलेंगे नो मोर, मुझे हटा दो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता. इसका मतलब कि ये जो आनंद आपको मिल रहा था, ये रियल हैप्पीनेस नहीं थी, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं कर रही है. आफ्टर अ पॉइंट इट इज गोइंग टू रिपल्स यू, ये आपको घिन आने लगेगी. सो दिस वाज नॉट हैप्पीनेस. आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसको हैप्पीनेस समझ रहे थे. रियल हैप्पीनेस इज कि वो परमानेंट होगी, वो एवर इंक्रीजिंग होगी, मतलब वो बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी. उसको आप शेयर कर पाएंगे विद योर लव्ड वंस. जो आजकल आप अपनी सभी सुविधाएं, सुख सुविधाएं देख लीजिए, you are not able to share it with your loved ones. If you have a very expensive car or watch or money or whatever, you will immediately lock it and you will decide किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं शेयर करना है. इसको नहीं गाड़ी दे सकते, ये ठोक देगा कहीं पे, केवल उसी को दे सकता हूँ, even though he is my closest family member. पैसे को भी संभाल संभाल के खर्च करेंगे कि सब खत्म हो जाएंगे अगर मैं सबको देना चाहूंगा तो. So again, this is not real happiness. Money is not real happiness because you can't share it with all your loved ones. And चौथा, variety नहीं है. Can you eat the same food every day? Can you go to the same holiday place every day? Can you hear the same music every day? And can you read the same book every day? Can you do the same activity every day? You want variety, isn't it? This means कि जो भी आप इस वक्त चीजें कर रहे हो, वो रियल हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहे हो. यू आर फूलिंग योरसेल्फ कि मैं खुश होने के लिए कर रहा हूँ. ये जैसे ये आदमी सिर पकड़ के बैठा है, पर इसको घर वाले क्या सजेस्ट करेंगे, चल आज यहाँ खाने चलते हैं, चल वो पिक्चर देखने चलते हैं. वही पिक्चर आप, कैन यू वॉच इट फॉर द नेक्स्ट 50 years, द सेम मूवी? नो, यू विल गेट बोर्ड. यू विल वॉन्ट वेराइटी. दिस मीन्स कि आप जो खा कर अपना दिल बहला रहे हो, जो सुनकर अपना दिल बहला रहे हो, जिस जगह पे जाकर अपना दिल बहला रहे हो, जिन लोगों के साथ करके अपना दिल बहला रहे हो, वो सही तरीका या सही हैप्पीनेस नहीं है. दैट इज टेम्पररी बिकॉज इट इज नीदर परमानेंट. वो इंक्रीज नहीं कर रहा है विद टाइम, वो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, और उसमें वैरायटी नहीं है.
सो शास्त्र में बताते हैं, तो फिर वो आप क्यों कर रहे हो? ये सब रिलेटिव है. सो व्हाट इज परमानेंट हैप्पीनेस देन? जिनमें ये चारों चीजें हों, वो परमानेंट है. कैसे? अगेन लेट्स सी. रिलेटिव हैप्पीनेस मतलब जब हम रिलेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें वो जो खुशी मिलती है उसको रिलेटिव हैप्पीनेस बोलते हैं. और रियल हैप्पीनेस किसको कहते हैं? जिसको हम एक बार सॉल्व करें केवल और परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, उसको रियल हैप्पीनेस बोलेंगे. सो रिलेटिव हैप्पीनेस कैसे हुआ? जैसे आज आपको कोई तकलीफ हुई, आपके सपोजिंग आपको चोट लगी, आपने फटाफट भागकर टाइम पे डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करा लिया, वहां दर्द होना बंद हो गया और वो हील हो गई और आपको खुशी मिली. वाह, थैंक गॉड, मैंने अपने बच्चे की चोट टाइम पे ठीक कर ली, कोरोना से उसे बचा लिया, खुद को भी बचा लिया, वैक्सीनेशन करवा ली, थैंक गॉड, आई एम हैप्पी. दिस इज शॉर्ट लिव्ड. जैसे ही तीसरा वेरिएंट आया, चौथा वेरिएंट आया, पांचवा वेरिएंट आया, फिर से वो हैप्पीनेस चली गई, फिर चिंता में बैठ गई. अब इसका क्या, अब इसका क्या करूं? तो वो रिलेटिव, वो हैप्पीनेस केवल कुछ क्षणों की थी. जो सोल्यूशन आपने दिया वो टेम्पररी सोल्यूशन था, फिर से आप चिंता में पड़ गए हो. सो दिस इज अ विशियस साइकिल. ये 100 वर्ष के आप हो जाओगे तब भी आप इसमें से निकल नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन. आपके दांत में दर्द है, आपके लिए दुख की बात है, डेंटिस्ट के लिए कमाने का मौका है. सो आपके लिए दुख की बात, उसका सुख है. उसी तरह जो सब्जी बेच रहा है, बारिश हुई, सब्जी वाले ने कोसा कि बारिश क्यों हो गई, मेरी फसल खराब हो गई और मेरी आज बिक्री भी नहीं होगी. लेकिन छाता बेचने वाले के लिए खुशी की बात है. सारी दुनिया इसी प्रिंसिपल पे चल रही है. जो एक पक्ष के लिए मुश्किल काम है या दुख का काम है, दूसरे पक्ष के लिए वही सुख का काम है. इसलिए जो उसे सुख दे रहा है वो उसे करता चला जा रहा है, जो इसको सुख दे रहा है वो इसे करता चला जा रहा है. और दोनों में क्लैशेस होते जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोसते जा रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एवरीबडी इज गेटिंग ओनली हैप्पीनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम. बिकॉज मुझे जो सुख दे रहा है वो दूसरे को सुख नहीं दे रहा है, और मैं अपना सुख जो मुझे दे रहा है मैं उसे करना बंद नहीं करूंगी. और सामने वाले को उससे दुख मिल रहा है, इसलिए वो करना शुरू कर देगा जिससे मुझे दुख मिल रहा है, और वो उसे करना बंद नहीं करेगा. सो वी आर नेवर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम. रियल प्रॉब्लम, हाउ मेनी ऑफ यू कैन नाउ से कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है, या उसके क्या, अगर ये चीजें रिलेटिव हैं तो फिर रियल हम किसको बोलेंगे? Let's discuss some world problems. What are some of the problems in the world? Or some of the problems in your life? Forget world. पहले खुद का घर संभालें, तब दुनिया की चिंता करेंगे. Can you quickly type in the chat box the various problems in your life right now, which are on the top of your mind that you want to get rid of immediately? And let's discuss whether they are relative or they are permanent. I will just take the first 5. Wait for the first 5 before we start. Health issues, okay. Relationships, yes. Work stress, yes. Stress of any kind. Competition, very good. Competition means ईर्ष्या. Uncertainty, yes. कल के बारे में कुछ नहीं पता है. Okay. So let's see if all of these come in these. Is it common to all? Are these problems common to all? No one wants it and everybody gets it. This is the definition of a real problem. क्यों हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को डिस्कस करने में? यू नो, वन कैन फील यार, कम टू द पॉइंट, हमें प्रॉब्लम की समाधान दो. हम प्रॉब्लम का इतना डायसेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंसर इसी में छुपा है. The moment you solve the real problem, the relative problem gets solved automatically. दोनों रिलेटेड हैं, दोनों लिंक्ड हैं. मर्सिडीज के पीछे ही ट्रैक्टर बंधा हुआ है. मर्सिडीज चलनी शुरू हो जाएगी तो ट्रैक्टर की ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर राइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी.
आप ट्रैक्टर से उठकर मर्सिडीज में बैठ जाओगे। सो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हमारी लाइफ का डेडिकेशन होना चाहिए। हमारा यूथ, हमारा हमारी एनर्जी, हमारी all our resources, all our time, all our all the help that we can get, all our family support we should be using to solve the real problem. And we waste our whole life trying to solve just the relative problem. बस मेरे बच्चे का इम्तिहान हो जाए, बस इसकी शादी हो जाए, बस मेरे रिटायरमेंट प्लान हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा। और दुनिया, वर्ल्ड की लीडरशिप, हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी हमको इस भ्रम में, इस धोखे में रख रहे हैं। You know, they are all trying to guide you. Buy this, you will be happy. Go take that holiday, that vacation, you will be happy. Get this for your spouse, your marriage will be happy. Do this for your child, do this course for your child. Usko nursery se hi training shuru kar do, you will be happy. They are all trying to feed you relative problems and giving you relative solutions. But a real problem is that which is common to all. No one wants it and everybody gets it. If you can solve this problem, all your relative problems will be solved. So as you can see, every problem in the world today is relative. अगर आज सपोजिंग सुनामी आ गया कहीं पे, तो ये केवल उस कंट्री की प्रॉब्लम है, बाकी कंट्रीज आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट. So they are not, it is not a real problem. It is just a relative problem for that moment. Other countries are happy and making merry. Similarly, एक कंट्री में भूख है, दूसरी कंट्री are splurging. They're using, like a country like America is using 20% of the world's resources, whereas the rest of the world is going hungry. So they're not bothered. उनको वो problems है ही नहीं जो दूसरी countries को है. All these are relative problems. So let's see what are the real problems. Real problems is births. Let's see whether this comes in this. Is it common to all? The real problem वो होती है जो ये तीनों conditions satisfy करे. Common to all, no one wants it, everybody gets it. Can that be applied to birth? Whether it is in America, the richest country, America, Europe, Canada, चाहे birth वहां हो रहा हो, चाहे इंडिया में हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे किसी टेररिस्ट अफ्लिक्टेड जगह में हो रहा हो, अफ्रीका में हो, कहीं पे भी बर्थ हो रहा हो, राजा के घर हो रहा हो, भिखारी के घर हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, बर्थ इज कॉमन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल. एंड भागवतम बताता है बर्थ इज वेरी पेनफुल. इमेजिन योरसेल्फ कि आपको एक गर्म पानी में उल्टा लटकाया गया है और उस थैली को ऊपर टाइटली बंद कर दिया है और आप उसमें अपसाइड डाउन लटके हुए हो. आपके नाक मुंह प्लग्ड हैं, आंखें बंद हैं और उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, माँ के जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं. दे बाइट यू. तभी जब बच्चा पैदा होता है, इट हैज रेड ब्लिस्टर्स, रेड मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी. इट इज दैट दोस बैक्टीरियाज दैट बाइट हिम थ्रू आउट. और वो गर्म है, वहां अंधकार है, एंड इट इज फुल ऑफ द मदर्स वेस्ट. सो बर्थ इज द रियल प्रॉब्लम. इट्स वेरी पेनफुल. हमें मिसलीड कर रही है द करंट एजुकेशन सिस्टम दैट बर्थ इज अ जॉय. इट्स वेरी पेनफुल. और अलग अलग माँ के उदर में जन्म लेना, बार बार, पुनरअपि मरणम जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम. अलग अलग जननियों माओ के बर्थ, उदर में, वूम्ब में जन्म लेना. सिमिलरली डेथ सबको आएगी. The richest man, the most powerful man, the most well-connected man, the strongest man cannot escape death. Old age, sabko aayegi. Nobody can escape. There's only one way to escape old age. Any guesses? There are few people who will never get old age. Any guesses? Yeah. Any guesses? Amartav. I don't know what that means. If you die young, आप ओल्ड एज से पहले ही मृत्यु के गोद में सो गए. एंड डिजीज. So BDOD, birth, death,
old age and disease are the real problems of life. लेकिन हम अपनी छोटी छोटी relative problems को solve करने में इतने व्यस्त हैं, उस बकरी की तरह जो चारा खाने में व्यस्त है. She is not bothered. मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं देखना कि ये कसाई घर में खड़ी हूं मैं, मुझे कसाई घर से मिल रही है ये घास. I am not bothered about that. मुझे घास मिल रही है ना, that's it. So हमारी पोजीशन उस बकरी की तरह है who is waiting to get slaughtered. अगला नंबर उसी का है, but she is happy. Wow, green grass. But if she had thought about birth, death, old age and disease, she would have had a real chance to escape from the butcher. And not only these four, तीन और हैं. आध्यात्मिक, अभी आप लोगों ने सबने कहा stress. This is also a type of disease of the mind and the body. इसलिए इतने सारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के ऑफिसेज आजकल भरे हुए हैं, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा है. बॉडी की प्रॉब्लम तो चलो बाहर से मल्लम लगा के ठीक हो जाएगी, दिमाग के अंदर कौन सी दवाई डालोगे उसे ठीक करने के लिए? शास्त्र में से आध्यात्मिक ताप बोलते हैं. देन देयर इज आदि भौतिक प्रॉब्लम. आदि भौतिक मतलब दूसरों द्वारा दी कोई. अच्छा स्पाउस नहीं मिला, अच्छी वाइफ नहीं मिली, अच्छे बच्चे नहीं मिले, पड़ोसी बुरा मिल गया, बॉस बुरा मिल गया. We have no control over these things in our life. Absolutely no control. These are called आदि भौतिक, मतलब हम सब कठपुतली हैं. These we should stop thinking कि ये हमारे कंट्रोल में है चीजें और हम इसे ठीक कर लेंगे. And third is आदि दैविक, नेचर द्वारा दी गई हमें जो परेशानियां हैं, like COVID. You know, एक छोटा सा वायरस जो माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखता, वो भी मिलियन टाइम्स उसको एक्सपैंड करना पड़ता है तब जाके दिख रहा है, उसने क्या उधम मचा दिया पूरी दुनिया में. चाहे वो अमीर देश था या गरीब था, सबके सब उसकी लपेट में आ गए. सो यू कैन स्टॉप फीलिंग और बिहेविंग लाइक वी आर some great advanced civilization. We can't even manage a small virus. खोज में लगी हुई है दुनिया, अभी भी उसका सोल्यूशन नहीं मिला है. ये तो नेचर ने ही उसको अपने ओन पैटर्न से वीकन कर दिया है. नेचर ने किया, हम नहीं कर पाए. कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर उसे कम नहीं कर पाया. नेचर ने ही उसे किया. नेचर ने उसे खड़ा भी किया, नेचर ने उसे गिरा भी दिया. सो दीज फोर, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 7 types of problems are the real problems. So we've already seen what is the difference between animals and us. The difference is the same difference that is between seed and ABCD. And then we have seen relative problems and real problems. An intelligent man will focus on the real problems, और उनको जैसे ही solve करेगा, relative problems immediately solve हो जाएंगे. So let's see how to achieve real happiness. The third part. Supposing you have a blood infection, जिसकी वजह से आपको पाइल्स हुआ है या आपको स्किन इन्फेक्शंस हो गई हैं, पूरे शरीर पे घमौरियां निकल आई हैं, and you go to the doctor and he gives you a cream. आपने क्रीम लगाई, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. पहले लेफ्ट हैंड में बॉयल था, क्रीम लगाई, वहां से बॉयल चला गया, राइट हैंड पे आ गया. चलो राइट हैंड पे भी क्रीम लगा ली तो राइट लेग पे आ गया. चलो लेफ्ट लेग पे भी क्रीम लगा ली तो लेफ्ट लेग पे आ गया. सो यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग फ्री फ्रॉम इट. आप उसको बस सुपरफिशियल सोल्यूशन दे रहे हो, ऊपर ऊपर से लगा के, जिसकी वजह से वो बार बार आ रहा है. व्हाट इज अ परमानेंट सोल्यूशन? ब्लड को ट्रीट करो. फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस बॉयल. सो बॉयल को मत ट्रीट करो, बॉयल के कारण को ट्रीट करो. सो जब आपका ब्लड ट्रीट होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा, इफ यू गेट अ ब्लड प्योरीफायर इंजेक्शन, वो हर जगह आना बंद हो जाएगा. एंड व्हाट आर वी डूइंग टुडे? वी आर अप्लाइंग क्रीम्स. हाउ? we'll just see that medicine cures the disease from the root, but a painkiller gives only a superficial relief from the pain of the disease. The difference between allopathy and Ayurveda. Ayurveda means head. Allopathy means 10 people have headache, same medicine for all 10 people. 100 people have headache, same medicine for all 100 people. But what does Ayurvedic say?
10 people have headache, 10 different medicines for the same problem. 100 people have headache, 100 different medicines for the same problem. Why? Because each person is different. Each person's needs, nature, anarthas, karmas are different. So one solution will not apply to all. So allopathy is like a painkiller. It's a superficial relief. तो वो बार बार आपको डिजीज आती जाएगी. लेकिन जब आप आयुर्वेद फॉलो करेंगे, आयुर्वेद शास्त्र फॉलो करेंगे, वेद फॉलो करेंगे, आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ वेदा. जब आप वेद फॉलो करेंगे, दे विल गिव यू द रूट कॉज, दे विल गो टू द बॉटम ऑफ व्हाई यू आर हैविंग अ हेडेक एंड दे विल गिव यू अ suitable medicine. Then you will be cured. For example, if they see patient 1 and they realize कि bad eating habits की वजह से इसको headache हो रहा है, तो उसकी medicine अलग होगी. Patient 2 की stress levels की वजह से headache हो रहा है, तो उसकी medicine अलग होगी. And then only they will be permanently cured. This is intelligence. And why, if we don't do this, what happens? Look at the disadvantages. There are side effects. There is no permanent solution because वो आपको बार बार तंग करेगा. Not only that, it can make your disease worse. Today, the biggest problem in India is कि antibiotics इतना अनडिस्क्रिमिनेटली यूज हुए हैं कि सब में इतनी रेजिस्टेंस बिल्ड हो गई है एंटीबायोटिक्स के लिए कि कल को अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आ जाता है, इंडिया के लोगों को देने के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं बचेगी, क्योंकि हमने इतना ज्यादा अब्यूज किया है एंटीबायोटिक्स को. और डॉक्टर्स इस बात से घबरा रहे हैं कि हमारे पास अब कोई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बची ही नहीं है टू ट्राई, बिकॉज उसको इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर लिया फॉर इवन माइनर एलिमेंट्स. तो it has made the disease worse. So let us see what are the हमारी लाइफ के पेन किलर्स क्या हैं. Let us see. Scientific advancement. हमें ये बताया जा रहा है कि शास्त्र तो दकियानुसी चीज है, ब्लाइंड फेथ है, इसका कोई आधार नहीं है. साइंस का बहुत आधार है. हम तो आपको प्रूव करके बताते हैं that Na+ H2+O is H2O. तो इसी पे विश्वास करना चाहिए. So you can see कि हमने अपनी इतनी एडवांसमेंट कर ली कि हमने बैलगाड़ी से प्रोग्रेस कर ली और हाथी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से प्रोग्रेस करके गाड़ी तक आ गए, जिसपे हम फराटेदार जा सकते हैं. टेम्पररी रिलीफ मिला. आज क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं that there is the ozone layer has gone. Not only have we destroyed our environment, we have even destroyed the oil reserves which are under the earth. Plus हम उस गाड़ी में बैठ के कहीं जा भी नहीं पा रहे, क्योंकि सड़कों की लिमिटेशन हो गई, ट्रैफिक जैम्स हो गई. इससे तो अब आदमी सोचता है पैदल ही चले जाएं या जाएं ही नहीं. सो हमने एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को डबल ट्रिपल कर दिया. सो दिस इज व्हाट साइंटिफिक एडवांसमेंट गिव्स यू. वी आर बीइंग फूल्ड into believing that science is solving problems. Actually, science without guidance is increasing our problems. These are just a few examples. पहले लो लेवल, सब स्टैंडर्ड लेवल के प्रोग्राम्स आते थे, लेकिन स्मार्ट टीवी आने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई हैं. पहले तो सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स थी, नाउ मेंटल एंड हेल्थ बोथ. Science has, for old age, for white hair, they have created dye. For old age, they have created Botox, facelifts. For diseases, they have created painkillers. But they have not been able to stop old age. They have not been able to solve the root cause of the problem. But yoga could. Our yogis could extend their life to 1,000 years, 10,000 years. अपना लाइफ स्पेन इंक्रीज कर लेते थे बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी हेयर डाई के, फेस लिफ्ट के, पेन किलर के, ऑक्सीजन ट्यूब्स के, जस्ट बाय फॉलोइंग अथर्व शास्त्र. सिमिलरली हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो हमने इंक्रीज कर ली. बट बिकॉज ऑफ दिस health issues have doubled, tripled. Backaches, colon aches, stomach problems, PCODs. Women are not the same anymore. हमारी कम्युनिकेशन सुपर फास्ट हो गई, पड़ोसी ही नहीं पता हमें कौन आया है, और अगर आया भी है, वी डोंट वांट टू मीट द पड़ोसी, बट वी वांट टू बी ऑन इंटरनेट एंड रोम द होल वर्ल्ड 10 times in a day and come back.
ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई, जिसकी वजह से पोर्नोग्राफी हैज रीच टू 500 टाइम्स. So scientific advancement, is it really providing solutions to our problems? We are being fooled to saying believe science, help science, pay for science, and promote science. Shastra says no. Similarly, mental tricks. Positive thinking seminars are so much in business today. They will tell you, think positive. Problem है, yes, उसको ignore करो, उसको देखो मत, सोचो कि वो चला गया, वो गायब हो गया. आप सोचोगे तो वो गायब हो जाएगा. Really? You can think and your old age will go away? With positive thinking, your disease will go away? Your birth, death, old age, and disease will go away with positive thinking? They have started all kinds of man-made yoga, naked yoga, bamboo yoga, mud yoga, this yoga, that yoga, twisting and turning, and trying to tell people, you do this, you will become happy. These are nothing but cat-have religion. These are cheating. These are tricks that the people of this world are playing on other people of this world. All these positive thinking seminar people, they also end up smoking and drinking at the end of the day, trying to think, agla seminar mujhe kahan milega? Mujhe I have to pay the bills for my family. वो भी अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बाहर में ही जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सेमिनार देने वाले, चाहे वो किसी भी फोरम के हो. You take the life of anyone. Amog Leela Prabhu was saying, I attended a positive thinking seminar. जो स्पीकर है वो ब्रेक में बाहर गया, he said आप लोग भी ब्रेक लो. And I was curious, so I followed him. और मैंने देखा कि वो नीचे जाके सिगरेट पी रहा है. मैंने कहा आप तो अभी इतना अंदर पॉजिटिव थिंकिंग सेमिनार दे रहे थे, यू नो, ऑन हैप्पीनेस क्वोशंट, हाउ यू कैन बी हैप्पी ऑल डे, पर आप यहाँ पर लंच नहीं कर रहे. आइए. कहते नहीं नहीं यार, बहुत टेंशन है, अभी इसके बाद मुझे कहीं और जाना है. I'll just smoke one cigarette and I'll be fine and I'll join you back. So he realized that these positive thinking seminars and these Dale Carnegie neuro-linguistic programs, all these forums are not the real thing. They are mental tricks. Same way, religion. Astha channel. Half the people that come up on Astha channel are in jail. People, लोगों का विश्वास उठ गया है धर्म से कि ये जो बताते हैं उस वो करते तो है नहीं और जेल में है फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. इन चीजों की वजह से ये जेल में है. प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, भागवत कथा देने आ जाते हैं प्रोफेशनल, पैसा लेकर, जस्ट टू बिकम फेमस. दे डू नॉट नो द कंक्लूजन ऑफ दोज भागवत कथास. और हम अपने घरों में रिचुअल्स तो कर रहे हैं, रिलीजियस रिचुअल्स. बेटा माथा टेको, बेटा मंडे को ये मत खाओ, ट्यूसडे को ये मत खाओ, इसको वहां पे चढ़ा दो, ये जल वहां पे जाके चढ़ा दो. जब बच्चे पूछते हैं क्यों करना है, बस करते चले आ रहे हैं इसलिए करना है. तो वो बर्डन बन गया और बर्डन की वजह से विश्वास उठ गया कि यार ये तो, यू नो, इफ आई कांट सी द लॉजिक इन दिस, व्हाई डू आई हैव टू डू इट. और मजाक बन गया. सनातन धर्म के रिचुअल्स का मजाक बन चुका है बिकॉज वी डोंट नो द साइंस बिहाइंड देम, because we are so busy following the scientists of this world. So speed तो हमने achieve कर ली, लेकिन direction नहीं है. So can you imagine speed without direction, how dangerous that can be? Where will it take you? It can't take you anywhere. So what is the permanent solution? Here, this is the last slide of today. So as you can see, this child is crying. It's a very nice story. There is a child who went with his father to Disneyland. So आप में से कई लोग डिज्नीलैंड, maybe you know or you don't know. So let's take बॉम्बे में आपका जो सबसे बड़ा मेला होता है या जो भी, there is a great fair that has taken place and the small child catches the hand of his father and they go to the मेला. दोनों टिकट्स खरीद लेते हैं, अंदर जाते हैं, and once they enter inside, it's a different दुनिया altogether. बाहर की दुनिया से मेले की दुनिया बिल्कुल अलग, रंग बिरंगी, खुशबुएं चारों तरफ से आ रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बन रही हैं, इतने सारे कलर्स हैं, इतनी सारी राइड्स हैं. You can only see people laughing. कोई वहां पे दुखी नहीं है. Everybody is laughing, everybody is spending time with their family, clicking pictures, holding hands, kissing and hugging each other. So it's a happy environment. और बच्चा अपने फादर का हाथ पकड़ पकड़ के ये सारी चीजें एंजॉय कर रहा है. And then the child gets overexcited. The father says, here, hold my hand, धीरे धीरे चलेंगे, मेरी गाइडेंस के साथ चलो, one by one हम सारी राइड्स करेंगे. But the child gets greedy.
And he says, it's such a nice place. I can just see that ride, quickly do that and come back. तो उसका हाथ उसके फादर से छूट जाता है. जैसे ही उसका हाथ छूट जाता है, he immediately gets scared because now सारे अजनबी हैं. जैसे ही उसके फादर, जब तक फादर ने हाथ पकड़ा हुआ था, he had a feeling of protection, he had a feeling of belonging and a security. जैसे ही फादर से हाथ छूटा, he got anxious, fear, and he started crying. The same मेला अब उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत डरावना लग रहा है, और वहां पे सब लोग आके उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं. यू नो, एवरीबडी हैज, कोई आके बच्चे को कहता है, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, ये आइसक्रीम खा लो. तो वो थोड़ी देर आइसक्रीम खाता है, उसके बाद दोबारा से उसे याद आ जाता है, ओह लेकिन इससे मेरे फादर तो मुझे मिल नहीं जाएंगे. आइसक्रीम तो मैंने खा ली, लेकिन फादर तो अभी भी नहीं मिले. सो पुराना दुखी जैसे ही याद आता है, फिर रोना शुरू कर देता है. फिर कोई आता है, कहता है, अरे बच्चे आप रो क्यों रहे हो, कम कम हम ये राइड कर लेते हैं, कम, आई विल पे फॉर योर टिकट, मैं आपको ये राइड करवाता हूँ. देन यू, सो वो थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाता है. जैसे ही राइड खत्म होती है, वो आदमी चला जाता है, इसे फिर याद आ जाता है दैट आई एम स्टिल लॉस्ट, आई एम स्टिल लॉस्ट. इस तरह सारा दिन बीत जाता है. एंड अलग अलग लोग आते हैं, कोई उससे कुछ खिलाता है, कोई उसके आंसू पोंछता है, कोई 2 मिनट उसके पास बैठ के बात कर लेता है, कोई उसे कुछ राइड्स करवा देता है. बट एट द एंड ऑफ एवरी हेल्प he comes back to his miserable position of crying. Why? Because he still didn't get back his father. So none of those things of the Mela are able to satisfy him. The eating, sleeping, mating and defending कर करके फिर भी he realizes कि मैं अब भी सुखी नहीं हूं. और क्या ढूंढ रहा है? The security of the hand of his father, जो उसने छोड़ दिया था, चाहे मर्जी से, चाहे accidentally. And all he wants is to just catch that hand back again. And then by chance a swami comes there in that mela. और वो स्वामी आकर उस बच्चे के पास बैठते हैं. A spiritual person, a genuine spiritual person. I'm not talking about dhongi gurus and babas. He comes and holds his hand, asks him his name gently and relaxes him, then asks him about his father. And the child is not able to explain, and the guru and the spiritual swami tries to stitch a picture of his father. He asks him, what does he look like? What was he wearing? Where did you see him last? Then he holds his hand and takes him to that place where the child felt that it was the last place where he was holding his father's hand. And when they reach there, the father is actually standing there crying, looking for his child. And this Swami gently picks up the child, takes his hand, puts it in the hand of the father, and says, now that I've united him, the child, to the parent, all his problems are going to be taken care of permanently. This is a permanent solution. And the child immediately falls at the feet of the spiritual master and the guru for having connected him back to his father, because that was a permanent solution. जो बाकी लोग मेले में उस बच्चे को दे रहे थे, वो relative solution था, क्योंकि वो relative problems थी. भूख लगना, प्यास लगना, थक जाना, ये सारी उसकी relative problems थी, कुछ देर की problems थी. Permanent problem थी कि वो अपने पेरेंट के लिए तड़प रहा था. तो सुपरफिशियल सोल्यूशन से उसको टेम्पररी रिलीफ मिला, लेकिन जब उसको परमानेंट सोल्यूशन दिया गया, उसको अपने पिता, हु इज अ मल्टी मिलियनेयर, के साथ मिला दिया गया. ऑल हिज प्रॉब्लम्स वर टेकन केयर ऑफ. Hence, this is the link, the kadi. The real solution is to go back to your real father. There is no need for mental tricks. There is no need for superficial religion. There is no need for seed, sleeping, eating, mating, and defending. The moment you go back to your multi-millionaire father,
You will never require anything else ever in the world because everything belongs to him and you are also the owner of that. अगर आप एक मल्टी मिलियनर के बेटे हो तो whatever the father possesses, automatically you also possess that. So we are actually searching for happiness, but in the wrong place. We are searching for water, but in the desert. So जिस तरह खाने की जगह को भोजनालय बोलते हैं, पीने की जगह को मदिरालय बोलते हैं, पढ़ने की जगह को विद्यालय बोलते हैं और लाइब्रेरी को ग्रंथालय बोलते हैं, उसी तरह शास्त्र इस दुनिया को क्या नाम देता है? डू यू नो? 2 नाम दिए गए हैं इस पृथ्वी को. डेफिनेटली इस पृथ्वी को प्लेस ऑफ हैप्पीनेस तो नहीं बोला गया. भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में पृथ्वी को प्लेस ऑफ हैप्पीनेस या प्लेस ऑफ एंजॉय नहीं बोला गया. 2 नाम दिए गए हैं, दुखालयम, अशाश्वतम. मतलब ये जगह दुख भोगने के लिए है, प्लस ये जगह अशाश्वतम है, टेम्पररी है. तो जब आपको इस जगह का नाम पता चल गया, जब आपको पता चल गया कि आपने किराए का मकान लिया है और उस मकान के बाहर नेम प्लेट पे लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, what will an intelligent person do? May I have your cameras on, please? So all of us have taken rent in a building. The name of the building is Dukhalayam and the name of your flat is Ashashvatam. What will you do? Welcome to the real world. The temporary and misleading world is telling you, wow, this is a place of enjoyment. So buy my products and you'll be happy. You know, book your holiday in my resort and you'll be happy. Marry this girl, you'll be happy. Marry that boy, you'll be happy. Do this, you'll be happy. But Shastra says, I have given you birth in Dukhalayam Ashashvatam. What will you do? What will be your first reaction once a real well-wisher comes and shares this information with you, which is the Shastra? Why is the Shastra a real well-wisher? Because they don't change their statement with time. Whatever they said 5,000 years ago, still they will say the same thing. ना वो उसको politically correct करेंगे, ना वो उसको current social situation के हिसाब से modify करेंगे. They will only speak the truth. Therefore, they are your best friend. They will not cheat you. They will not give you painkillers. They will not misguide you. They will tell you the harsh truth. Why? So that you can take the right decision. Why? Because choice is yours. This free independence, this freedom that has been given to you to use it wisely. But you can only use it wisely if you have the right information. So what will you do? You can raise your hands. And we can take that one by one, maybe. Another 5 minutes we can close. Karishma, how do you want this to go? Okay. So what will you do? आपकी सोसाइटी का नाम अशाश्वतम है, मतलब ये टेम्पररी है आपकी सोसाइटी. ओके, कभी भी रेज हो सकती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है. और जिस फ्लैट में आपको जो आपको फ्लैट नंबर दिया है उसका नाम नेम प्लेट है दुखालय. ठीक है, बहुत ग्रैंड है, बहुत ऑपुलेंट है, फ्री में मिला है, फुली फर्निश्ड है, नौकर चाकर है, सब कुछ है. बट हम उनको उसकी चकाचौंध में नेम प्लेट पढ़ना भूल गए हैं, इसलिए अपनी चॉइस को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे. सो व्हाट विल यू डू? Okay, finding happiness. How? Sure, we want happiness. Of course we want happiness. It's our birthright. It's our birthright to be happy. We are the children of a multi-millionaire father, the father of this universe. Everything belongs to him. We also belong to him. We have a right to be happy. So what do we do? But we are not. So what do we do?
Remembering our father. Calling our father. Calling our father. Yes, remembering our father. Very much. Discover yourself. Yes. Any other ideas? We will see that in the next session. The key to this is in the next session. Okay, so thank you very much for your time, for your patience, for your attention. Utsah, Nishchaya, Dhairya, the 3 ingredients that are needed and which will make the difference between temporary happiness and bliss. Hare Krishna, thank you. Thank you so much, Vanita ji. Thank you. Hare Krishna. If anyone has Thank you. some burning question, you may ask, or else I just want to thank Mataji for this, especially your last ending analogy of the millionaire father and the lost son. We all are lost. We all feel so lost. And I feel it's good to feel lost because then we know that we are away from our source. Absolutely. At least we are not like that goat that is happy eating the green grass. Why should we be just happy with that? You should be worried, but worried for the right reasons, because then you'll get the right solution. And once you get the right solution, nobody can take that smile from you. Absolutely. Thank you so much. So I hope everybody really took back a lot from this session. For me personally, it was also breaking a lot of myths that came, a lot of pointers that were there in the middle that, you know, were like reality shakers for me. And I hope everybody felt the same. And yes, so thank you so much. If there are no questions, then we will end the session and we will meet again next Saturday to dive deeper into this and and discover our permanent happiness. Yeah. So I will share this PDF with you, or you can please revise it, go through the slides again, think about it on what we heard on each of those slides. And there'll be a little quiz, so it'll keep you active and thinking. I will post that also in the group. And let's meet next week to take it to the next step. Okay? I just want to tell you that at the end of the 6 sessions, there's good news, because Shastra is our guide. Okay? So thank you very much. Hare Krishna. Okay, thank you. Hare Krishna, everybody. Thank you, brother. Thank you.